आहे ते सगळे बंद करा आणि स्टेजच्या मागावर उभं राहा. हमारे मंच के सामने पधार चुकी है, उनका हमारे के साथ खूप समयमध्ये आपला प्रोग्राम स्टार्ट होत आहे. तारपा महोत्सव का आयोजन हुआ है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी. कलेक्टर महोदया श्रीमती भानु प्रभा जी, उनके परिवार से उनका आगमन हुआ है, उनका हम दिल से स्वागत करते हैं. और जो भी दर्शकगण यहाँ पर इस तारपा महोत्सव में पधारे हैं उनसे हम नम्र निवेदन कर मौका मिला है तो अब सभी दर्शकगण, सभी मेहमान, सभी नृत्य कलाकार, सभी लोगों का तारपा उत्सव कमेटी, सभी कलाकारों में जोश भरेगा तो उत्साह. स्वागत तो बनता ही है. अब कुछ ही क्षणों में परंपरागत रीत रिवाज, हाथ में पत्ते लेकर जो जी पधार चुके हैं तो उनका हम दिल से स्वागत करते हैं. साथ ही में हमारे काफी दिनों से
जार था. आपल्यासोबत इथं जे काय थोडी वेळ मागा जातो त्यांची, ते पण पधारले आहेत. हमारे पारंपरिक गीत बहुत सारे लोगों का स्वागत या नाम लेना कहीं पे भूल चूक होती है तो दिल से मांगता खरेखर देखा मागता त्यांचं नाव आहे ना सिर्फ तारपा की है, यह गूंज है हमारी प्रदेश के विभिन्न असं प्रस्तुत करत आहेत. असा लागतच आहे, अशी परंपरा चालू राहायला पाहिजे. प्रकृतीची आणि पूजा देखत आहोत. वाह घोडीवाला वाह. आणि हा खूप छान पिरामिड आहे. धीरे धीरे यांचा जोश वधत आहे. हे प्रणाम करत आहे सगळे. खुशी मनाओ, आनंद मनाओ. जोरदार तालिया. बघा घोडा किती स्वान बनवला त्यांनी डान्स असताना. आणि घोड्यावर विराजमान लक्ष्मी राणी. हे आपला डांग जिल्ह्याचा नाच आहे. ही नाच, ही कला, ही त्याची एनर्जी आज साबित करत आहे. इतका जोश बढ़ाए. ये डोक्यावर भार आहे. अशी फॅशन कधी देखत नाही होगी. दर्शक एकदम जोश वधा. एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान. दर्शक तालिया प्लीज बजाइए. हे हमारे आपले आदिवासी तारपा जे आदिवासी पेहरवेश आहे, ते पेहरवेशमध्ये प्रभाव करत आहे.
तयारी करी आदिवासी थोडा आला आहे एकदा जोश वाटला जोरदार तालिया दूर थाळी Soria Nurtia Kontari, Professor Cho, Bakun Karya Presentation. पैसा लगता है ना खर्चा लगता है इन कलाकारों के लिए बहुत अच्छा लगता है Miss Flower and Style 2022 Miss Gujarat Top Model 2022 विनर आहे याच्यामध्ये जोरदार ताली आदिवासी तारपा याचे भक्त आपल्या इथं रॅम्प वॉक करायला येत आहे स्नेहा पटेल जबरदस्त પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો છે તારપા ફેસ્ટિવલના નામે આપણે ઉજવણી કરતા આવ્યા છે અને આજે કરી પણ રહ્યા છીએ મને ઘણી ખુશી આજે થાય છે કે આપણા આદિવાસી સમાજના યુવાઓ ભાઈઓ અને બહેનો મળીને તમે નવી શરૂઆત કરી છે તારપાનું મહત્વ તો તમને અહીં જણાવવામાં આવ્યું જ છે પણ હું પણ બે શબ્દ કહીશ આજે મેં પણ 8 या 9 મહિનાથી હેલ્થના ઇસ્યુના લીધે હું બહાર નહીં નીકળી હું ફર્સ્ટ ટાઈમ જ આ પ્રોગ્રામ તમારો એટેન્ડ કરવા આવી છું ખાસ કરીને આજે આપણે આદિવાસી સમાજ માટે તારપાનું શું મહત્વ છે એ બધાએ જોયું છે જાણતા છે પણ એ સંસ્કૃતિને ટકાવી રાખવા માટે નવું જનરેશન જે યુથ આગળ આવ્યું છે બહુ ઘણું ખુશીની વાત છે ગર્વની વાત છે ખૂબ ખૂબ તમને આભાર મારા તરફથી એટલા માટે આભાર કહીશ કે આ સંસ્કૃતિ તમારા સિવાય કોઈ સાચવી શકવાનું નથી તારપાનું મહત્વ જ જોઈને આપણે તારપા ફેસ્ટિવલનો પ્રોગ્રામ થતો હતો એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા પ્રોગ્રામ કરવામાં આવતો હતો 3 દિવસનો પ્રોગ્રામ આપણે અલગ અલગ વિવિધ ક્ષેત્રથી કરવામાં આવતો હતો આપણી સંસ્કૃતિ જળવાઈ રહે પબ્લિસિટી થાય ટુરિઝમનો પણ વિકાસ થાય એ બધું જ વિચાર કરીને આપણા મોહનભાઈ તે ટાઈમ એમપી હતા એમણે શરૂઆત કરવામાં આવી 2016 સુધી આ ફેસ્ટિવલ કન્ટિન્યુઅસ ચાલતો રહ્યો પછી અચાનક બંધ કરી દેવામાં આવ્યો ઘણી વખત આપણા મોહનભાઈએ પણ સંસદમાં રજૂઆત કરી મેં પણ રજૂઆત કરી પણ દુઃખની વાત એ છે કે એ પ્રોગ્રામ આપણે પાછા ચાલુ નહીં કરી શકતા ખાસ કરીને પ્રશાસન કરે તો ઘણું બધું જ જાગૃતતા આવે લોકોમાં જાગૃતતા આવે ટુરિઝમનો પણ વિકાસ થાય 3 દિવસના પ્રોગ્રામમાં અલગ અલગ પ્રાંતથી બધા લોકો આવે પણ એ ન થઈ શક્યું ખુશીની વાત આજે એ છે કે આપણા નવયુવાન ભાઈઓએ આ જે કામ કરવાનું હતું તે કર્યું એ બદલ ખૂબ જ ખુશી થાય આજે તારપા નૃત્યની વાત કરીશ અમે આવ્યા અમારું સ્વાગત પણ તમે નૃત્યથી કર્યું આપણા પ્રદેશમાં પણ મહેમાનો આવે આપણે એમનું સ્વાગત તારપાથી કરીએ એમને સ્મૃતિ ચિહ્ન તરીકે પણ આપણે તારપાને ભેટ આપીએ તો પછી આપણા સમાજ આદિવાસી સમાજનો આ વાદ્ય
તારપા માટે કેમ આટલું અણગમવું? એટલે હું તો એટલું જ કહીશ કે આજે આપણે હરેક આદિવાસી સમાજ મંચ પર એક થયા છે, આવ્યા છે, આ ફેસ્ટિવલમાં બધા સામેલ થયા છે અને એનું મહત્વ પણ આજે સ્ટેજ પરથી આપણને જોવા મળ્યું છે. આ જ મહત્વને ધ્યાનમાં રાખીને જ્યાં જ્યાં પ્રદેશની સમસ્યા હોય, મુદ્દા હોય, સમાજની વાત હોય, તો હું આજે આજના દિવસે એટલું જ કહેવા માંગીશ કે બધા જ આદિવાસી સમાજના જે પણ આગેવાનો છે એક મંચ પર આવે ને જેવી રીતના આજનો પ્રોગ્રામ આપણે સક્સેસ કર્યો છે એવી જ રીતના આપણા જે પણ આગળના દિવસોમાં જે મુદ્દાઓ હોય એકજૂટ થઈને એ જ સમસ્યાનું સમાધાન કરી શકીએ એવું આજના દિવસે તમને કહેવા માંગીશ. पीढ़ी को, अगर इस समाज को, ये दादरा नगर हवेली के अस्तित्व को बचाना है तो हमको एक साथ में रहना पड़ेगा. हमको रात में भी जागना पड़ेगा समाज के लिए. और हमारा समाज एक कार्यक्रम को, एक ऐसा कार्यक्रम करके जाता है, आता है और जाता है खाना खा के. ये चलेगा नहीं समाज में. तारपा महोत्सव का जो उत्साह है हर साल होते आया है. कोई बाहर से कलाकार आ जाता है, एक दो अपने परफॉर्मेंस देता है और चले जाता है, लेकिन यहाँ की संस्कृति के बारे में ना समाज को पता होता है ना यहाँ के शासन को पता होता है. ये काम तारपा महोत्सव खानवेल में हुआ है और इसके लिए सारे आयोजन के साथियों को मैं धन्यवाद करती हूँ. साथियों, हम क्या चाहते हैं ये दिखा दिया इन्होंने. अगर दादरा नगर के अस्तित्व को, यहाँ के मूल मालिक को अगर बचाना है तो उसको उसकी संस्कृति समझनी चाहिए. उसको एक साथ में रहना पड़ेगा, नहीं तो उसके भी वाद्यों का डीजे बन जाएगा. ये डीजे नहीं बनाना है, हमारी संस्कृति को जताना है, इसके लिए आए. हम दादरा नगर हवेली में देखते हैं, हम बाहर नहीं देखेंगे, भारत के बाकी राज्यों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ की बात करेंगे. हम केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, लेकिन हालत क्या है, हमारी परिस्थिति क्या है कि हम आज भी बेरोजगार हैं. आज भी हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि हम लोग एक जगह पे बैठ के सिर्फ बात भी नहीं कर सकते समाज के बारे में, क्योंकि यहाँ की शासन उसकी जिम्मेदार है, कोई नहीं है. समाज में कोई अस्तित्व निर्माण नहीं हुआ दादरा नगर हवेली में कि यहाँ का युवा आदिवासी की बात करे. और ये काम करने का एक पहला कदम ये तारपा महोत्सव ने रखा हुआ है. सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ की कल्चरल दिखाने के लिए नहीं, यहाँ की व्यक्ति, यहाँ की सोच क्या है, ये हर साल कैसे अच्छा हो सकता है और हमारा आने वाला भविष्य हमारी संस्कृति को कैसे समझ सकता है, इसकी ये तैयारी है, इसकी ये शुरुआत है. साथियों, हमारी जो आरक्षण है वो गैर आदिवासी ले सकता है. हमारी जमीन है जो गैर आदिवासी ले सकता है. हमारी नौकरी है वो गैर आदिवासी ले सकता है. अगर कुछ ले नहीं सकता है तो वो हमारी आदिवासियत, हमारी संस्कृति. और हम आज भी गुमराह है. हमारा समाज करके एक जगह पे नहीं आता, लेकिन नेता आया तो उसके पीछे भाग जाता है. होगा क्या? समाज की परिस्थिति बदलेगी क्या? साथियों, आज हम देख रहे दादरा नगर हवेली में 4000 कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रही है. सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मुंबई के मालिक है, उसके बावजूद हमारा आदिवासी बेरोजगार हो रहा है. और उसके बाद में हमारा आदिवासी को मरने की मौत का रास्ता अपनाना पड़ रहा है. क्यों? यहाँ की प्रशासन कर क्या रही है? केंद्र शासित प्रशासन है. ये कोई राज्य नहीं है, ये केंद्र से संलग्नित है. फिर भी हमारा युवा, हमारा आदिवासी आदमी मृत्यु की तरफ भाग रहा है. उसको कैसे बचाया जाए, ये संस्कृति के द्वारा हमारा समाज को समझाना पड़ेगा, हमारे कल्चर को बचाना पड़ेगा. हम देख रहे देश में क्या हो रहा है. ये जो लड़के हैं ब्रिजेश, यहाँ पे तेलंगाना से मेरा भाई आया हुआ है, राजस्थान से आए हैं, गुजरात से आए, हर राज्य से आए हैं. क्यों? क्योंकि एकता की जरूरत है, समाज को एक बनाना है. हम देख रहे हैं कि हमारा साथी, हमारा बच्चा, हमारा 60 साल का बच्चा भी वो समाज को
को नहीं समझ पाता है, इसी वजह से समाज जागरूक नहीं है। हमारा पहला प्रयास है कि महिलाओं ने जागरूक होना चाहिए। उसकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा ही गुलाम बनता है और उसके पेट से पैदा होने वाला ही बच्चा बिरसा मुंडा पैदा होता है, क्रांतिकारी पैदा होता है। और आदिवासी महिलाओं को आज शेरनी बनना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा, इस बिरसा मुंडा की मां बनना पड़ेगा, तभी समाज जागरूक होगा और तभी ये लड़ सकेंगे। क्योंकि समाज खतरे में है, समाप्ति की राह पे, कुछ नहीं रहेगा, आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और 4-5 कंपनी आ गई तो हमारे गांव उजड़ जाएंगे। जब जब भारत में व्यवस्था की बात आती, विकास की बात आती है, तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी क्षेत्र इनको नजर आता है विस्थापित करने के लिए। आदिवासी को बचाने के लिए कोई काम नहीं करता। यहाँ पे देश में टाइगर बचाओ का आंदोलन चलता है, यहाँ पे जंगल बचाओ का आंदोलन चलता है, लेकिन देश के मूल मालिक को बचाने का आंदोलन नहीं चलता है। और वह आंदोलन महिलाओं ने स्वीकारना चाहिए। आपको अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा समाज क्या है। ये बेटा, ये जो दिखाई है ये बच्चों को, ये कल्चर डीजे पे डांस करने से अच्छा अपने वाद्य पे, आदिवासी वाद्य पे डांस होना चाहिए। हमारी महिलाओं को सिखाना पड़ेगा। हमारे अभी ब्राह्मण शादी लगा रहे, वो महिलाओं ने आगे आके महिलाओं ने शादी लगाना चाहिए आदिवासी, और वो बचाना चाहिए। अपने गांव में शिक्षा का एक गोटुल, हमारे समाज में गोटुल हुआ करता था, जहाँ पे हमें हर तरह की शिक्षा दिया करती थी, वो भी महिलाएं। ये आदिवासी संस्कृति है, ये आदिवासी समाज है, आज वो खत्म हो गया। हम लोग उपास तापास में बिजी है महिलाएं। उपास से आपके परिवार नहीं सुरक्षित हो सकता। आपका अगर परिवार सुरक्षित हो सकता है तो आपको अपना सर का पल्ला कमर में खोजकर कलेक्टर के ऑफिस के सामने अपने अधिकार मांगने के लिए खड़े होने पड़ेंगे, तब आपका बच्चा सुरक्षित होगा, पूरे देश का बच्चा सुरक्षित होगा, देश का आदिवासी बच्चा। ये हमारी आवाज, हमारी पुकार है। तारपा महोत्सव जिस तरह से आज ये पहला कदम हमारा है, जो हमने अपनी संस्कृति का जतन किया, हमारे युवा ने बहुत अच्छी मेहनत की, ये हर साल कितना अच्छा होना चाहिए, ये आपकी शुरुआत है। ये एक दिन का नहीं, ये पूरे महीने भर आदिवासी तारपा महोत्सव चलना चाहिए। इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई स्कूल में आपको आदिवासियत नहीं सिखाया जाता, कोई किताब में आपको समाज नहीं बताया जाएगा। यही है, यही रास्ता है जो आपको बताएगा कि आदिवासी क्या है, और कुछ नहीं है। आपको सामाजिक, ये लड़के हैं, इनसे तैयार हो जाइए। अगर आपको कोई भी आदिवासियों को तकलीफ होती है दादरा नगर हवेली में, सिर्फ मौत का रास्ता दिखता है, उसके पहले इन कार्यकर्ताओं से बातचीत कीजिए, इनसे बातचीत कीजिए, और तब तक कोई डिसीजन ना ले। ये समाज है, इस समाज में ये परिस्थिति है कि जानवर को भी आदिवासी भूखा नहीं रखता। हमारे गांव में कोई भूखा है तो हमारे गांव का हर एक व्यक्ति उसके बारे में सोचता है। ये आदिवासियत है। अभी नहीं चलेगा। महिलाओं से मैं विनती करना चाहती हूँ, आपको जैसे आप अपना पहनावा दिखाते हो, अपना कल्चर नृत्य रखते हो, तो आपको लड़ने की, क्योंकि इस भारत देश में सबसे पहला अगर किसी ने आंदोलन किया है, संघर्ष किया है देश आजाद होने के लिए, तो वो आदिवासी है, क्योंकि ये उसका देश है, उसकी धरती है, वो जल जमी जंगल उसके है, इसलिए पहला संघर्ष आदिवासी कर रहा है। तो ये दादरा नगर हवेली में आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित कैसे रहे, इसका संघर्ष आज से आपको शुरू करना पड़ेगा। यही ये तारपा महोत्सव से मैं आप सबको विनती करना चाहती हूँ। साथियों, हम लोग को एकता कायम करनी है। ऐसे जहाँ पे अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं तो हमारे लोग भीड़ों से चले जाते हैं। ये तुम्हारा जमन, ये तुम्हारा कार्यक्रम है, तुम बच्चों परिवार की सहित यहाँ पे आ जाओ। ये महोत्सव आपको, ये महोत्सव ये महोत्सव सिखाना चाहता है। इन युवाओं को कुछ पड़ी नहीं थी। ये जो युवा काम कर रहे हैं, 5-5 दिन से भूखे पैसे यहाँ पे आपके बीच में आ रहे हैं, समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, इनको कोई पड़ी नहीं थी। ये आपके लिए करना चाहते कि वो चाहते हैं मेरा आदिवासी स्वाभिमान से जिए, दादरा नगर रहने वाला आदिवासी एक स्वाभिमान से जिए, राजा बन के जिए, ना कि गुलाम बन के जिए। इसके लिए इन लोगों ने काम किया। इन लोगों के लिए आके तारपा महोत्सव, सभी लोगों के लिए आप जोरदार तालियां बजाएंगे। ये ऐसी कोई मेहनत नहीं करता, कोई नेता सामने नहीं आता समाज को इकट्ठा करने के लिए, कोई नेता नहीं आता समाज को सुरक्षित क्यों भाई, क्यों मौत का रास्ता अपना रहा है ये बोलने के लिए। ये साथी आएंगे आपके दरवाजे पे, भाई तू भूखा है, तुझे लड़ना है तो आ हमारे साथ। ये साथी है। हाँ। यही इस देश के इस वक्त के बिरसा मुंडा, यही इस वक्त के तंटा भील है। तो आपको एक जगह पे आने के लिए इनका साथ देना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा, सामाजिक संगठन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपकी जल जमीन जंगल यहाँ की बचेगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। मैं इतना बोलकर आप लोगों को, सबको आने वाले तारपा महोत्सव 24 के लिए बड़ी बड़ी शुभकामना देती हूँ कि वो सफल तरीके से आप लोग करें। ये सिर्फ 10-15 व्यक्ति नहीं तो
तो 15 लाख लोग यहाँ पे हमें जमने चाहिए, ऐसी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। यही बोलकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।